Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to discuss the UPSC CSE strategy series prelims paper 2 CSAT. So far we have discussed the paper 1 strategy. Now we are going to discuss the paper 2 strategy. अब हम paper 2 strategy discuss करने जा रहे हैं and this is going to be very important because we all know that the CSAT paper is qualifying in nature. When I say CSAT is qualifying in nature, I mean to say that if you clear this paper only then your paper 1 will be checked, it will be opened up. जब आप ये पेपर क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर 1 जो है वो चेक होगा. If you do not qualify this paper, paper 1 will not be opened up, right? So if you want to make sure that you enter the mains without any hurdle, you have to qualify CSAT पेपर 2. ठीक है, भले ही आपके फुल नंबर आ रहे हो पेपर 1 में, वो चेक ही नहीं होगा अगर CSAT क्लियर नहीं हुआ. सो इट इज़ क्वालिफाइंग पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर है. एंड इन दिस पेपर दी टोटल क्वेश्चंस विल बी 80 क्वेश्चंस होंगे. MCQ फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चंस. लैंग्वेज विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसके वो 200 होंगे. ठीक है, एंड इट इज़ क्वालिफाइंग, दैट मीन्स 33% मार्क्स यू हैव टू अचीव. दैट मीन्स 66 मार्क्स तो होने चाहिए पास करने के लिए इस पेपर को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी. बिफोर दैट हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए. दैट इज रिलेटेड टू द UPSC CSE ऑप्शनल कॉम्बो दैट अनअकैडमी प्लस हैज लॉन्च्ड, इन विच दे आर प्रोवाइडिंग यू 2 ऑप्शनल कॉम्बोज. फर्स्ट कॉम्बो इज दिस वन wherein you can take GS plus subscription along with the optional subscription, and second combo is plus iconic subscription for GS and optional plus subscription. तो ये कॉम्बो है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक में यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस एंड स्टडी ट्रैकर अलॉन्ग विद योर क्लासेस. तो आपको एक कोच भी अलॉट किया जाएगा. दैट कोच विल हेल्प यू टू बी डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड इन योर एंटायर प्रेपरेशन जर्नी, whether it is your prelims, whether it is mains or whether it is interview. आपको thoroughly dedicate रखेगा आपका personal coach. It can be Mrinal Patel sir also, it can be Roman Saini sir also, it can be any G Rajput sir also, अवधेश सिंह सर भी हो सकते हैं. कोई भी आपका टॉप एजुकेटर अनअकैडमी का हो सकता है in this category. ओके, सो हेयर यू कैन सी द प्राइस चार्ट ऑल्सो. आप प्राइस चार्ट भी देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. For 12 months 70,000 if you are taking the plus GS optional subscription, but if you are taking iconic plus optional subscription 88,000 the fees, right? And you are getting 10% discount also if you use the code Sharma20. अगर आप Sharma20 कोड यूज़ करते हैं तो आपको easily 10% डिस्काउंट भी आपकी सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा. ठीक है, द लिंक इज गिवन बिलो इन द description box below the video, so you can click on the link and you can subscribe today. So let's start the session शुरू करते हैं. So before we start with CSAT we should know the syllabus. हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, what is CSAT. ठीक है, let us understand what is CSAT. CSAT means Civil Services Aptitude Test. ठीक है, when you do not know the meaning of CSAT then preparing for CSAT will be a waste. So when you know the meaning you can prepare accordingly. अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता है तो आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, CSAT के लिए. सो इट इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. सो इट्स योर टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड. अब सम ऑफ दी स्टूडेंट्स दे से मैम CSAT इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ UPSC never takes, you can say frames any topic, any subject. It does not frame any question paper, any test without giving it a प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर थॉट. बिना सोचे समझे UPSC कोई एग्जाम नहीं क्रिएट करता. ठीक है, UPSC is going to test your aptitude which is required as an IAS IRS officer, as an IPS officer on field. On field आप वहाँ पर रटी रटाई किताब की नॉलेज को नहीं शो करने वाले हो. यू आर नॉट गोइंग टू शो योर crammed up bookish knowledge, right? What you need on field is your aptitude. वहाँ पर आपसे कोई मुगल की हिस्ट्री नहीं पूछेगा. On field nobody is going to ask you what is Mughal empire's history, right? Why did the Turkish empire attack? तो ये सारी चीज़ें आपसे फील्ड में नहीं पूछेंगे. जब कोई सिचुएशन आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल देर इज एनी टेररिस्ट अटैक और एनी नक्सल अटैक, nobody is going to make you stand and ask you questions from geography or history. They will check your aptitude, how well you respond. आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो सिचुएशन को. ठीक है, दे विल चेक योर एप्टीट्यूड इन दैट केस. एप्टीट्यूड कैन बी चेक्ड थ्रू CSAT पेपर. तो एप्टीट्यूड के लिए आपका CSAT का पेपर बनाया गया कि भाई रटा रटाए ज्ञान तो बहुत लोग अच्छे से घोट लेते हैं.
Many students, they are very intelligent in cramming, very fast in cramming, right? Some students are very good in making proper strategy also, right? Strategy के साथ analysis के साथ पढ़ने में भी अच्छे होते हैं बच्चे, but aptitude हर किसी में नहीं होता, ये डेवलप करना पड़ता है. यू नीड टू डेवलप योर एप्टीट्यूड, एंड प्लस यू आर नॉट इवन बॉर्न विद एप्टीट्यूड, यू डेवलप इट विद टाइम. ऐसा नहीं होता कि सब बच्चे एप्टीट्यूड के साथ बॉर्न होते हैं, आप इसको डेवलप करते हो. ठीक है. सो व्हाट इज योर आउटलुक ऑन द सिचुएशन, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड, हाउ फास्ट यू कैन रिस्पॉन्ड, दैट इज टेस्टेड थ्रू सीसैट. ये सीसैट के थ्रू आपके माइंड की स्पीड को टेस्ट किया जाता है. ठीक है. सो दैट इज वाई प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन सीसैट. सो इट्स अ पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिलिम्स, ये आपके प्रिलिम्स का ही पार्ट होता है. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिलिम्स ओनली. ठीक है. जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है ये. इट इज़ जीएस पेपर 2 इन प्रिलिम्स. प्रिलिम्स में पेपर 2 ये आता है. एंड इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर. Qualifying means only if you clear this paper, your paper 1 in prelims will be checked. Even if you are scoring full marks in paper 1, they will not open it up, they will not check it if you are failing in CSAT. अगर CSAT में नहीं निकल रहा है आपका, तो पेपर 1 में भले ही फुल नंबर हैं, खोलेंगे भी नहीं उसको, बिकॉज दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग है. सो देयर आर टोटल 80 क्वेश्चंस इन दिस पेपर. MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें. ठीक है. 80 क्वेश्चंस आर देयर टोटल, एंड ये 200 मार्क्स का होता है. इट्स ऑफ 200 मार्क्स, एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग. 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है. ठीक है. यानी कि गलत मार्क किया तो मार्क्स कटेंगे. इफ यू आर मार्किंग द ऑप्शन रॉन्गली, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, एंड यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स. ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं. आउट ऑफ 200 कम से कम 66 मार्क्स आपको अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो जाकर आपका पेपर 1 चेक होगा. इफ़ यू आर स्कोरिंग 33% मार्क्स आउट ऑफ 200, 66 के अराउंड मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आपका पेपर 1 ओपन अप किया जाएगा. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को. सो इन प्रिलिम्स वी हैव सो फार स्टडीड दैट प्रिलिम्स एग्जाम इज ऑफ 2 पार्ट्स. प्रिलिम्स का जो एग्जाम है आपका, वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. ठीक है. इट्स डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स. MCQs टाइप ही होते हैं क्वेश्चंस दोनों में ही, बोथ आर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. देन वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2 इज CSAT. देन इन मेंस वी हैव 9 थ्योरी पेपर्स. मेंस में तो आपका थ्योरी होता है, 9 थ्योरी पेपर्स होते हैं आपके टोटल. ठीक है. एक्सेप्ट इफ यू हैव टेकन मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल, इट विल बी प्रैक्टिकल. देन यू हैव इंटरव्यू. फिर आपका इंटरव्यू होता है, दैट इज नोन एज PI, पर्सनैलिटी टेस्ट. PT बोलते हैं उसको, या PI पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं. हेयर योर बुकिश नॉलेज इज नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड. अगेन पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, नेचर, बिहेवियर टेस्ट किया जाता है. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो अगर आपका नेचर क्रिटिसाइजिंग है, जजमेंटल नेचर है, तो वहाँ पर पकड़े जाते हैं बच्चे. इफ समबडीज नेचर इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिसिज्म ओरिएंटेड, गॉसिपिंग टाइप, जजमेंटल, नेगेटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर सब पकड़े जाएंगे. ठीक है. हियर दे विल कैच यू बिकॉज द इंटरव्यू बोर्ड इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं. तो CSAT की जब हम बात करते हैं, इसका पैटर्न क्या है. यू ऑल नो 2021 एग्जाम कब होने वाला है आपका, 27 जून. ठीक है. 27 जून को आपका एग्जाम है, 27 जून 2021. यू हैव एम्पल नंबर ऑफ टाइम इफ़ यू आर गिविंग दिस ईयर. अगर आप इस साल दे रहे हो तो काफ़ी समय है. सो इन द CSAT पेपर, फर्स्ट थिंग टू नो इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं. दे आर गोइंग टू आस्क 80 क्वेश्चंस. ठीक है. सेकेंड थिंग इज देयर नेगेटिव मार्किंग. क्या नेगेटिव मार्क्स होंगे. येस. ठीक है. 1/3 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. ठीक है. टाइम कितना होगा, 2 आवर्स का ही टाइम होगा. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड CSAT, देन दिस 2 आवर्स टाइम विल बी अ वेरी शॉर्ट पीरियड. देखने में तो लग रहा है 2 घंटे का टाइम है, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे. नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये 2 घंटे भी कम पड़ेंगे. ठीक है. देन टाइप ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता. ठीक है. डेट अभी 2021 में 27 जून है. एंड येस, इट इज क्वालिफाइंग पेपर. दैट मीन्स 33% क्वालिफाइंग मार्क्स यू हैव टू गेट आउट ऑफ 200 टू क्वालिफाई दिस पेपर. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं. सिलेबस इज वेरी शॉर्ट. सिलेबस इसका काफ़ी शॉर्ट है. देन आई विल टेल यू द बुक लिस्ट. ठीक है. सिलेबस इज वेरी शॉर्ट. फर्स्ट वी हैव कॉम्प्रीहेंशन. पहले हमारे पास आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन. सो दे विल गिव यू कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस देंगे, एंड देन दे विल गिव यू बेस्ड ऑन दैट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, दे विल गिव यू 5 to 6 क्वेश्चंस. 5 से 6 क्वेश्चंस देंगे आपको. ठीक है. समटाइम्स 12 क्वेश्चंस ऑल्सो कैन कम फ्रॉम वन सिंगल कॉम्प्रीहेंशन. एंड आफ्टर रीडिंग दैट कॉम्प्रीहेंशन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. दे विल आस्क यू टू
mention the, identify the correct summary of the comprehension और आइडेंटिफाई दी टाइटल ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन, क्या टाइटल आप दे सकते हो, इस कॉम्प्रीहेंशन पे क्या टाइटल सूट करता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. एंड हाउ कैन यू अटेम्प्ट दीज कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस? ओनली इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स. नाउ students, they say, ma'am, we refer to magazines and current affairs videos online, and that is enough. You are highly mistaken in your approach if you think that newspaper reading is not enough. अगर आपको लगता है ना न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम वेस्ट है, तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो बेटा, ठीक है. बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट अ टाइम वेस्ट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू सिक्योर फुल मार्क्स इन कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन जो है ये आपकी चाबी है क्वालिफाइंग मार्क्स अटेन करने की. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन ओनली. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो यहाँ पर ये मत समझना कॉम्प्रीहेंशन दे दिया तो अपनी लॉजिकल स्किल्स लगा रहे हो, अपनी इंटरप्रिटेशन से आंसर कर रहे हो, वो भी वहां भी गए, मात मिल जाएगी आपको. If you are just using your own interpretation, whatever you have studied in the current affairs, based on that you are marking the answer, again you are going to lose marks. Because you have to strictly abide with the comprehension only. बच्चे क्या करते हैं, comprehension ऊपर ऊपर से देखा, पूरा comprehension नहीं पढ़ा, questions देखे, अपने current affairs की understanding लगाई और mark करना शुरू कर दिया. 0 नंबर, negative marking में जाएगा. ठीक है. Always make sure that you are not sitting in CSAT paper with your preconceived notion and preconceived knowledge. अभी तक जो करंट अफेयर पढ़ा है वही दिमाग में रखकर बिना कॉम्प्रीहेंशन पढ़े आंसर करने लगे तो 0 नंबर. Always remember, based on the comprehension only, read it twice, read it once, twice, thrice, only then answer the question. Do not use your already applied current affairs knowledge. ठीक है, यहाँ पर गलती होती है. तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन न्यूट्रली by daily reading the newspaper, because the articles which are put as comprehension in the paper directly are taken from the Hindu newspaper. Hindu newspaper के जो editorials है ना, वहाँ से directly जो आर्टिकल्स हैं कॉम्प्रीहेंशन है वो उठाए जाते हैं. तो अगर इसलिए दैट इज वाई इट इज सेड रीडिंग द एडिटोरियल इज अ मस्ट, बिकॉज CSAT इज अ क्वालिफाइंग पेपर. यू कैन ईजिली स्कोर इवन मोर देन 100 इन CSAT. 66 लाने हैं, 100 से ऊपर ईजिली आ सकते हैं अगर कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड हो गई है. ट्रस्ट मी, एंड यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर दैट. ठीक है. नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी लेजी. ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं बहुत लेजी, बहुत आलसी हैं, इधर उधर वीडियोस देखा, इधर उधर मैगजीन देखा, करंट अफेयर हो गया, इसके बारे में कौन देखे, कॉम्प्रीहेंशन है, पढ़ के आंसर दे देंगे. वही स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाते. जो रेगुलरली एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो मेंस भी निकाल लेते हैं और CSAT का कॉम्प्रीहेंशन भी निकाल लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, हिंदू एडिटोरियल इफ यू आर रीडिंग देम, और इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल इफ यू आर रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ रहे हो देन ऑल्सो वेरी इजीली यू कैन क्लियर द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. पॉइंट क्लियर. अब सेकंड आपका टॉपिक है सिलेबस में द इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स. पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसमें आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, अगेन over here comprehension based questions will be asked. यहाँ पर भी आपके interpersonal skills में भी comprehension based question आएंगे, but the number of questions in the comprehensions will be low. For example, अगर direct editorial से comprehension आ रहे हैं, कम से कम 8 से 10 questions पूछेंगे. ठीक है, they will give you one passage and based on that one passage they will ask you 8 to 10 questions. ठीक है, इट विल बी एनालिटिकल इन नेचर. बट इंटरपर्सनल स्किल्स में अगेन दे विल गिव यू वन शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन. आपको एक छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन देंगे इसके अंदर, एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट कैन बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज. इस पैसेज का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है. व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज, यानी कि आप क्या कंक्लूजन निकालते हो इस पैसेज में से. ठीक है, और व्हाट कैन बी द समरी और कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज. आपको क्या लगता है इस पैसेज का समरी 1 लाइन में क्या होनी चाहिए. सो शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन विद 2-3 क्वेश्चंस ओनली विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंटरपर्सनल स्किल्स बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन. पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो बड़े बड़े कॉम्प्रीहेंशन आपके डायरेक्ट एडिटोरियल से आते हैं. छोटे छोटे जो पैसेजेस होते हैं जिसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो आपका अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग. अगेन फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू स्टडी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. यही 2 न्यूज़पेपर हैं जो आपको पढ़ने हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. एंड द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दे कैन स्टडी दैनिक जागरण ऑल्सो. जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड देम ऑल्सो टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर. डू नॉट स्किप हिंदू न्यूज़पेपर. अगर आप हिंदी मीडियम भी हो ना तो हिंदू तो पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए भी.
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, बिकॉज बेसिक सिंपल इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, द थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस इज, थर्ड टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। थर्ड पार्ट इज, नाउ दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आपका कॉमन सेंस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी योर कॉमन सेंस इज टेस्टेड, ठीक है। और कॉमन सेंस जो है वो सभी में डेवलप्ड होता है, ऑलरेडी यू हैव द कॉमन सेंस, बट विद प्रैक्टिस इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, प्रैक्टिस के साथ ये और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इसमें ना घमंड मत करना कि भाई ये तो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिक लगाना है, कर लेंगे, नहीं, ठीक है। डू नॉट बी एडमेंट इन दिस सेक्शन दैट वी कैन डू इट, एनालिटिकल एबिलिटी एवरीबडी हैज दैट स्मॉल लॉजिकल सेंस, कॉमन सेंस तो सबके पास है। डू नॉट बी ओवर ईगोइस्टिक अबाउट इट, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस इवन योर कॉमन सेंस कैन कम डाउन। प्रैक्टिस में नहीं लाओगे कॉमन सेंस को तो वो भी एक दिन आपको मात दे देगा, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स कॉमन सेंस ऑल्सो बिकम्स नॉट सो कॉमन, कभी कभी कॉमन सेंस भी नॉट सो कॉमन हो जाता है, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू डेवलप दिस कॉमन सेंस। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ्स। आपको ना ग्राफ्स या आपको टेबल दे देंगे बनाकर, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द टेबल्स एंड ग्राफ्स दे विल आस्क यू टू एनालाइज इट। आपको कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स एंड टेबल देंगे जो आप एनालिसिस के थ्रू ही आंसर कर सकते हो, और दे कैन गिव यू रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपको रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। दे विल गिव यू नेम ऑफ 5 पर्सनैलिटीज A, F, B, C, Z, ठीक है। देन दे विल टेल यू F इज द सन ऑफ A, F जो है A के बेटे हैं, B इज द वाइफ ऑफ C, B वाइफ है C की, तो Z, C का रिलेशन A से क्या होगा, F का रिलेशन Z से क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे। एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है अगर आपको प्रैक्टिस है इनकी। इट इज़ नॉट टफ, इट्स वेरी ईजी इफ़ यू हैव द प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया है इस तरीके की क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चंस आप कम से कम 4-5 सेकंड में सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं इन एनी केस इफ़ यू हैव गुड प्रैक्टिस। ऑन लॉजिकल रीजनिंग ओनली 1 मिनट, ठीक है, विद इन 1 मिनट यू कैन आंसर द क्वेश्चन ओनली इफ यू हैव प्रैक्टिस। देन लॉजिकल रीजनिंग में वो आपको शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, दे कैन गिव यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू शॉपकीपर्स ऑल्सो, ठीक है। इन्होंने इतना माल बेचा, इतना इसको बेचा, इतना उसको बेचा, फाइनली Z को कितना मिला, A को कितना मिला, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। Now coming on to the fourth category, that is general mental ability. This is again the easiest part. अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, प्रैक्टिस है बेसिक फॉर्मूलाज की, तो इससे बढ़िया इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता। इन जनरल मेंटल एबिलिटी दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। देन यू हैव टू स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने बचपन में पढ़े थे 6th 7th 8th 9th क्लास में, 10th तक पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। इवन इफ योर मैथ्स इज वीक, यू कैन नॉट बी वीक इन दीज टॉपिक्स। मान लो आपकी मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में वीक है, बट सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में प्रैक्टिस के साथ वो वीकनेस भी कॉन्फिडेंस में और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव जस्ट लॉस्ट टच, यू आर नॉट वीक इन मैथ्स, यू हैव जस्ट लॉस्ट टच, आपका टच छूट गया है। एंड दीज टॉपिक्स यू हैव स्टडीड व्हेन यू वर लिटिल चिल्ड्रन, जब आप छोटे थे ना, 6th 7th 8th 9th क्लास में बच्चे थे, तब पढ़े हैं आपने ये टॉपिक्स, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। देन टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन आएगा, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम में सरफेस एरिया, वॉल्यूम के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, एंड यू कैन सॉल्व देम विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर तो आप इसको सॉल्व भी कर दोगे इफ यू हैव प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस, आई विल टेल यू द बुक ऑल्सो, जिससे आपकी स्ट्रांग हो जाएगी मेंटल एबिलिटी। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू द बुक लिस्ट विच विल हेल्प यू टू फर्दर इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन योर जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। जो टच छूट गया है वो टच वापस बन जाएगा बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज तो सबसे इजी टॉपिक होता है, ये तो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, ऑल दीज टॉपिक्स यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ। प्रॉफिट एंड लॉस ये कब यूज करते हो, जब आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो। परसेंटेज सब्जी वगैरह खरीदते हो, इफ यू आर गोइंग आउट एंड शॉपिंग द वेजिटेबल्स और एनी प्रोडक्ट, यू आर यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, येस और नो। टाइम एंड वर्क, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, हाउस लोन वगैरह लेते हो तो सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं ना कॉन्सेप्ट। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ा था, इससे ईजी चैप्टर कोई हो नहीं सकता,
ठीक है, फाइंड x, लेट द वैल्यू ऑफ x बी 100 डालकर आप सारा निकाल सकते हो, ठीक है। देन फादर एंड सन्स एज लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो जाता है, ठीक है। द हिंट विल बी गिवन एंड थ्रू दैट यू कैन सॉल्व। देन बोट एंड स्ट्रीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, अपवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये 10th क्लास के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ही ईजी अगर कंपेयर करो। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक्स दैट देन आपका HCM और HCF और LCM जो होता है वो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। दिस इज अगेन ईजी। HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट ये आपने पढ़ा था 5th क्लास में। HCF एंड LCM कॉन्सेप्ट यू स्टडीड इन क्लास 5th, सिंस क्लास 5th, 5वीं कक्षा से पढ़ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। इसमें तो बिल्कुल अगर प्रैक्टिस हो गई तो ये तो सेकंड्स में सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को, ठीक है। सो क्लास 10th लेवल मैथ्स इज कमिंग नाउ। देयर आर स्टूडेंट्स हु स्प्रेड द रूमर्स, मैम क्लास 12th की भी आ रही है। नहीं, इतना कोई डीप नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है आपका, जो क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट है, बस इतना। बाकी क्लास 10th की मैथ्स है, ठीक है। एंड दिस मैथ्स इज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। टेबल्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। कम से कम 20 तक की टेबल को बिल्कुल फिंगरप्रिंट में कर लेना, ठीक है। पॉइंट क्लियर। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को थोड़ा फिंगरप्रिंट पे कर लेना। सो नाउ लेट अस डिस्कस द बुक लिस्ट। अब थोड़ा सा बुक लिस्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू टू स्टार्ट विद दिस बुक। एवरीबडी कैन सी दिस ऑन स्क्रीन, सब इसको देख सकते हैं। नाउ दिस इज क्रैकिंग द CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये किताब जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई है। Here all the question papers from 2011 to 2020 have been solved. 2011 से 2020 तक के सारे CSAT के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व, 13 से कॉन्सेप्ट आया है CSAT का, सॉल्व्ड है क्वेश्चन। फ्रॉम 2013 द ईयर व्हेन CSAT वाज इंट्रोड्यूस्ड टिल 2020 ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। 2013 से पहले CSAT का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसके बाद इसको लेकर आया गया, बहुत प्रोटेस्ट हुए, देवर मेनी प्रोटेस्ट, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो सिंस देन ऑल द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। PYQs की बुक है, स्टार्ट विद परचेजिंग दिस बुक एंड यू कैन गेट दिस बुक। सेकेंड हैंड भी मिल सकती है आपको, आप सेकेंड हैंड ले सकते हो, लेना है तो 2019 तक के क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। और यू कैन बाय इट ऑन Amazon ऑल्सो, आप Amazon पे भी खरीद सकते हो इस किताब को, ठीक है। आई विल बी गिविंग द लिंक बिलो, ठीक है। तो आप इस किताब को अगर आप ले लेते हो तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन पैटर्न्स का। यू विल हैव एन आइडिया। नाउ व्हाट दिस बुक हैज डन, इस बुक ने किया क्या है कि आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द ट्रिक्स ऑल्सो। इसमें आपको ट्रिक्स भी दिए हुए हैं। ट्रिक्स बाय इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन लेस टाइम। कम समय में, आपके पास 2 घंटे का समय होगा, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं आफ्टर एवरी क्वेश्चन पेपर। हर क्वेश्चन पेपर के बाद देर आर ट्रिक्स विच आर गिवन एंड देर आर फॉर्मूलाज, शॉर्ट फॉर्मूलाज विच आर गिवन विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट। आपको बहुत जल्दी फॉर्मूलाज की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना क्या होगा, लेट दिस बी 100 एंड यू आर गोइंग टू टेक टाइम इन सॉल्विंग वन क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, लंबा मेथड यूज करोगे जब आपको फॉर्मूलेज की नॉलेज नहीं होगी, ट्रिक्स की नॉलेज नहीं होगी, और आप कम से कम 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा दोगे। इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, ठीक है, दे विल गिव यू शॉर्ट फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट दिस बुक इज मैंडेटरी, ये किताब तो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आपकी दोनों पेपर्स में मैंडेटरी है, बिकॉज विदाउट नोइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न यू कैन नॉट डेवलप द स्ट्रैटेजी, ठीक है। नाउ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लगेगा हमारे लिए तो मैम ने कुछ बताया नहीं। फॉर यू ऑल्सो दिस इज द बुक बाय अरिहंत, क्रैकिंग CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2। ये आपके लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर यू दिस वन ब्लू बुक, एंड हिंदी मीडियम आपके लिए पिंक बुक है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर वीक इन मैथ्स? मेंटल एबिलिटी में या कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के समझने में आप में से कितने बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा कमजोरी है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अ लिटिल वीक इन मैथ्स, जो मैथ्स में वीक हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वीक हैं, फॉर देम दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है। इफ यू थिंक यू आर वीक इन मैथ्स, यू हैव लॉस्ट टच, बहुत टाइम हो गया मैथ्स पढ़े, कमजोर हो, या आपको फॉर्म स्क्रैच से पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी मैथ्स फ्रॉम स्क्रैच। एस चांद पब्लिकेशन की ये किताब है बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट किताब है, बेस्ट बुक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फुली सॉल्व्ड, ऑल द चैप्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस,
simple interest, percentage, LCM, HCF, everything is explained from scratch using tricks and formulas to be used in your UPSC examination. ठीक है, in this book. डॉक्टर RS अग्रवाल ने एस चांद की पब्लिकेशन की इस बुक में हर टॉपिक को ट्रिक्स के साथ, फॉर्मूलाज के साथ, विद एग्जाम्पल्स, विद क्वेश्चंस, plus they have given practice questions also, plus they have quoted questions from previous year question paper also. सब कुछ इसमें स्क्रैच के साथ तैयार किया है. फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम स्क्रैच दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. ट्रिक्स आर ऑल्सो देयर, फॉर्मुलाज आर ऑल्सो देयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर, एवरीथिंग, सब कुछ है इस किताब के अंदर. सो इफ यू आर वेरी वीक इन मैथ्स, यू कैन यूज दिस बुक. आप इस किताब को खरीद सकते हो. इफ यू थिंक यू आर वीक इन लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपको लगता है आप लॉजिकल रीजनिंग में वीक हो, पजल्स यू कैन नॉट सॉल्व देम प्रॉपरली, पजल्स में टफ आपको प्रॉब्लम लगती है, और ब्लड रिलेशंस में दिक्कत आती है, डेटास को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है, यू फाइंड इट टफ टू इंटरप्रेट डेटा और चार्ट्स और ग्राफ्स, ठीक है, देन यू कैन परचेज दिस बुक लॉजिकल रीजनिंग बाय अगेन एस चांद पब्लिकेशन, डॉक्टर RS अग्रवाल. इसमें भी अगेन ट्रिक्स आर गिवन टू सॉल्व पजल्स विद इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर आप पजल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें ट्रिक्स दिया है, फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, देयर आर फॉर्मूलाज प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज गिवन. For making your logical reasoning and quantitative aptitude stronger, you have to daily give 1 hour. इस किताब को, इन दोनों किताबों को डेली ऑल्टरनेटिव बेसिस पे 1 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा. बिकॉज फ्रॉम हेयर ओनली इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, फ्रॉम टुडे ओनली इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट विल हेल्प यू इन द रियल एग्जाम. ये मत सोचना एग्जाम से 20-25 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा. अगर आप वीक हो, इफ यू आर अ लिटिल वीक इन दीज two aspects, quantitative aptitude and logical reasoning, start your practice from today. If you are from engineering background, your maths is quite good. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मैथ्स सही है, तो आप CSAT एग्जाम डेट से 2 हफ्ते पहले भी तैयारी करना शुरू कर सकते हो CSAT की. ठीक है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ CSAT इफ यू आर फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड 2 वीक्स बिफोर द एक्चुअल एग्जाम. ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, इफ योर मैथ्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर हैविंग मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल ऑल्सो, इन दैट केस ऑल्सो 15 दिन पहले पढ़ोगे हो जाएगा. बट अगर आपको लगता है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इफ यू थिंक यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, देन स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. डेली 1 hour, हर दिन 1 घंटा. एंड डू नॉट मिस न्यूज़पेपर रीडिंग एट एनी कॉस्ट. न्यूज़पेपर रीडिंग किसी कॉस्ट पे मिस मत कर देना. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बिकॉज इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट फाइंड द चेंज टुडे इटसेल्फ. एक दिन में, इन 1 day, यू विल नॉट सी द चेंज, बट ऑन द एग्जाम डे ना, यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ. योर स्पीड विल इम्प्रूव, योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग विल इम्प्रूव. आप खुद चौंक जाओगे, मैं ये कर क्या रहा हूँ, एकदम से मुझे सब समझ आ रहा है. एनालिटिकल शार्पनेस बढ़ जाएगी आपकी. योर माइंड्स शार्पनेस विल इंक्रीज टू एनालाइज थिंग्स इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. होता क्या है, आप जिम जाते हो, रोज रोज इतना फर्क नहीं पड़ता, बट एक दिन अचानक आप किसी भी भारी भरकम चीज को आसानी से उठा लेते हो, तो बॉडी में चेंज पता चलता है ना. 4 महीने पहले जो चीज आपसे उठती नहीं थी, 4 महीने बाद आपके आर्म्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप उठा रहे हो इजीली. वाई? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. ठीक है, योर स्ट्रेंथ डेवलप्स ग्रेजुअली विद टाइम. सो इफ यू रीड द न्यूज़पेपर इन 1 day, यू विल नॉट फाइंड द चेंज. ठीक है, बट your mind's sharpness will be seen in mock test and in your prelims examination. ठीक है, so make sure you are reading the newspaper. ठीक है, and it is not tough to understand. न्यूज़पेपर तो सबसे easy है, आपके सारी बुकलेट से कंपेयर करो, बहुत easy है. ठीक है, why it is easy? Because it is based on your current events which is happening. If you think some words are tough, use dictionary. अगर आपको लगता है कुछ वर्ड्स टफ हैं तो डिक्शनरी क्यों बनाई है? ऐसे सजाने के लिए बनाई होती है डिक्शनरी? प्लीज लेट मी नो. डिक्शनरी इज जस्ट टू डेकोरेट योर स्टडी टेबल और टू यूज. सो इफ यू फाइंड सर्टन वर्ड्स टफ, what you can do is you can search the meaning on dictionary on your mobile. आपके मोबाइल पे सर्च कर लो, मोबाइल सबके पास है. ठीक है, that will make the newspaper reading easy. Okay, point clear? Plus it will enhance your vocabulary also. आपकी vocabulary भी enhance हो जानी है. ठीक है, point clear? So this is how you have to prepare for CSAT. Now coming on to the test series. अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की. CSAT टेस्ट सीरीज is a must because without practice, without time bound practice, you cannot know if you are good in CSAT or not, if you will be able to score good in CSAT or not. जब आपका time bound टेस्ट सीरीज नहीं होती है ना,
प्रेशराइज माहौल में जब आप नहीं देते हो टेस्ट तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी कैपेबिलिटी कितनी है. टू नो योर कैपेबिलिटी यू हैव टू गिव अ टाइम बाउंड टेस्ट. अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए टाइम बाउंड टेस्ट देना पड़ेगा. सो फॉर दैट देर आर मेनी टेस्ट सीरीज. अनअकैडमी की भी टेस्ट सीरीज है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन अनअकैडमीज टेस्ट सीरीज, एनी रिप्यूटेड वेब कोचिंग टेस्ट सीरीज यू कैन ज्वाइन. एंड राइट नाउ कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. ऑफलाइन जाकर खतरा लेने की जरूरत ही नहीं है. अब आपको पता है नया स्ट्रेन भी आ गया है इंडिया में. यू ऑल नो दैट द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस हैज ऑलरेडी एंटर्ड इंडिया. सो बी प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ. जितना हो सकता है, वैसे तो बाहर निकलना ही पड़ता है, बट जितना हो सकता है कॉन्टैक्ट कम करो, ठीक है. एंड यू कैन यूज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर दैट, ठीक है. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो टाइम बाउंड. आपको पता होता है टाइम बाउंड होते हैं, ठीक है, टेस्ट क्वेश्चंस. तो आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो. एंड मेक श्योर दैट यू आर स्कोरिंग 100+. 66 इज क्वालिफाइंग, बट यू कैन नॉट एम फॉर 66 ओनली, ठीक है. मुझे पता है 66 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग है, बट आप इतने तो लेस स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हो सकते कि 66 मार्क्स ही सोच कर जाओ मैं इतने ही लाऊंगा, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन. 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो सकता है. मेक श्योर 100 तो कम से कम आपके मार्क्स आप एम करो. 100 इफ यू आर स्कोरिंग दैट मीन्स यू आर सेफ. अगर आप 100 नंबर स्कोर कर रहे हो ना, आप सेफ हो, ठीक है, यू आर सेफ, ठीक है. बट इफ यू आर स्कोरिंग 70 देन रिस्की है भाई. In mock test, if you are scoring 670, don't think, wow, I have scored 66+, I am safe. No, that is risky, because in the real exam, marks can go up and down. So make sure in mock test you are scoring 100. ठीक है, in CSAT mock test आप 100 स्कोर कर रहे हो, ये make sure करना. 100+ that is very safe score, बहुत safe score है वो, ठीक है. तो आप confident हो सकते हो कि भाई CSAT का तो हो गया, ठीक है, ये तो तैयार हो गया. सो आई हैव टोल्ड यू द बुक लिस्ट ऑल्सो. मैंने सारी बुक लिस्ट भी बता दी है आपको, सिलेबस भी बता दी है. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर CSAT. नाउ डेली यू हैव टू डेडिकेट 1 hour. इफ यू आर वीक, इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप सैटरडे संडे को पढ़ सकते हो. इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना, सैटरडे संडे यू कैन कीप 2 hours for CSAT, 1 hour for CSAT. But if you are not from engineering background or your maths is weak, you can dedicate daily 1 hour or 30 minutes, ठीक है, फॉर CSAT. CSAT के लिए आप 1 घंटा या 30 मिनट दे सकते हो. बिफोर प्रीलिम्स, 2 months बिफोर प्रीलिम्स प्लीज स्टार्ट गिविंग द टेस्ट, ठीक है. तो 2 महीने प्रीलिम्स से पहले आप टेस्ट दे सकते हो. सो प्रीलिम्स से कम 2-3 महीने पहले, बिफोर प्रीलिम्स, 2 to 3 months बिफोर प्रीलिम्स, यू हैव टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, ठीक है. नाउ फॉर दैट अनअकैडमी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड सर्टन बैचेस. अनअकैडमी ने आपके GS से लेकर ऑप्शनल तक के बैचेस लॉन्च किए हैं, GS to ऑप्शनल, ठीक है. So over here GS to optional, these are the batches in which you can enroll yourself. आप enroll कर सकते हो if you are taking Iconic Plus subscription, ठीक है. तो ये आपका स्ट्रक्चर है. इन द Iconic Plus subscription you will be getting personal coach. यहाँ पर आपको personal coach मिलेगा, ठीक है. And you can use code Sharma20 to get 10% discount. Now the next question is, आपका next question आता है, मैम in CSAT paper should we go for the comprehension or should we go for maths? See, if you think your math solving ability is strong, अगर आपकी math solving ability strong है, then solve the maths questions, ठीक है. maths question आप then solve the comprehension, ठीक है. if your ability of solving maths is very fast, your speed is very good, then start with comprehension first. सारे comprehension के question solve कर लो फटाफट, कम से कम 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में, 1 hour 30 minutes या 1 hour में, 1 hour 15 minutes में, and then rest of the time you can use for solving maths. but if you think maths में आपको time लगता है, कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग आप जल्दी कर सकते हो, एनालिटिकल इज स्ट्रॉन्ग, देन स्टार्ट विद योर मैथ्स एंड देन कॉम्प्रीहेंशन, जो जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है. अब ये स्ट्रैटेजी आपके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन यू. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच एरिया इज स्ट्रॉन्ग, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, इन विच एरिया योर स्पीड इज वेरी फास्ट, किस एरिया में आपकी स्पीड ज़्यादा है, किस में आपको टाइम लगता है, ठीक है. तो आप ये भी कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू, इफ यू थिंक मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग स्पीडी, देन यू कैन सॉल्व ऑल द मैथ्स क्वेश्चंस फर्स्ट. सारे मैथ्स के क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर दो, बिकॉज हेयर योर चांसेस ऑफ गेटिंग हाई स्कोर्स इज हाई, ठीक है. यहाँ पर आपके स्कोर्स लाने के चांस ईजी हैं, हाई हैं, ठीक है. कॉम्प्रीहेंशन आपका वीक है, इसको लास्ट के लिए रख सकते हो, बिकॉज इसमें आप टाइम ज़्यादा लोगे, यू विल टेक मोर टाइम इन सॉल्विंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है. तो पहले 15-20 मिनट के अंदर आप मैथ्स का पोर्शन सॉल्व कर दो, बाकी सारा टाइम कॉम्प्रीहेंशन को दे दो. अगर कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले 15-20-25 मिनट कॉम्प्रीहेंशन को दो, बाकी का सारा 1.5 घंटा मैथ्स में डाल सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में, पजल्स में डाल सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है. 15 to 20 minutes you can take to solve the stronger part. Rest of the time you can dedicate for solving the weaker part.
पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है. तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है. इफ यू थिंक दैट ओनली वन टाइम गिविंग द मॉक टेस्ट और डूइंग प्रैक्टिस यू कैन स्कोर वेल, दैट इज अ मिथ. कुछ नहीं होने वाला उसमें, ठीक है. वन टाइम प्रैक्टिस इज अ मिथ, उससे कुछ नहीं होता, वो तो पागल बनाने वाली बात है. डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन सीसैट, ठीक है. सो दिस वॉज टुडेज क्लास, ये थी आपकी आज की क्लास. आई होप यू एंजॉयड. नाउ I am starting batches on Unacademy Plus in the month of January 2021. I am taking history and ethics. मैं history और ethics के batches लेने वाली हूँ, essay के batches भी लेने वाली हूँ. So you can subscribe to Unacademy Plus 1 year, 2 year और 6 months batch. You can use this code Sharma20 for 10% discount also. ठीक है, point clear? तो सीसैट से रिलेटेड बैचेस भी अनअकैडमी प्लस पे पूरी आपकी प्रिपरेशन बैच है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक के बैचेस हैं. तो यू कैन ज्वाइन द बैचेस ऑन अनअकैडमी प्लस. Sharma20 is the code for getting 10% discount. So this was all for today. I hope you enjoyed the session. Thank you everyone.